It gives me great pleasure to introduce Professor Mahesh Mishra, who is known as the surgeon who inspires. He has many accolades, but his greatest contributions were in creating the Apex Trauma Center at AIIMS New Delhi. Professor Mahesh Chandra Mishra has served at the prestigious All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for over 37 years and transitioned from being a senior resident, a professor, head of surgery, and the director of AIIMS. Professor Mishra is credited with the establishment of Apex Trauma Center at AIIMS, where he realized early on that trauma is going to be a major public health problem. He continued his work and was entrusted with the responsibility as chief of the JPN Apex Trauma Center in 2016, and it soon became a household name for providing coordinated and protocolized care to severely injured patients. He joined as the President and Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University of Medical Sciences. Professor Mishra is a recipient of various prestigious awards and fellowships. He was awarded with the Commonwealth Medical Fellowship in 1988 to undergo training in trauma care services at the Hope Hospital, University of Manchester in United Kingdom. He is also a recipient of Dr. B.C. Roy National Award. He also received the fellowship of the Royal College of Physicians and Surgeons from Glasgow and the National Academy of Medical Sciences, New Delhi. Without further delay, I would like to invite Professor Mishra to take the conversation forward. Over to Professor Mishra. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता. Thank you. गुरुजी प्रणाम. हर हर महादेव डॉक्टर साहब. If we begin by the present scenario in the country for last more or less 6 months now, 31st January 2020, we had the first set of medical students returning from China into Kerala who were found positive for COVID infection. We didn't see much surge in February, although Prime Minister and other ministers like Mr. Amit Shah did cancel their Holy Milan. We didn't have many cases until mid-March or late March. Even in April went quite okay. But whatever we are seeing, and we have seen from May and June and then July and August onwards, there is a huge surge of COVID positive cases. Any pandemic of this nature has 3 dimensions, Ashwini ji. One is medical aspect. Naturally, we were not prepared in the dimensions needed for this pandemic. So the lockdown period gave the central government and the state governments the opportunity to prepare, capacity build in terms of infrastructure and also human resource and other required capacity building in terms of testing labs, etc. Then it has psychosocial aspect, which has hugely impacted practically every section of society, rich or poor, middle class, lower middle class, everyone. None of us have been spared during this pandemic. And the third dimension naturally comes the financial aspect. The people have lost their jobs, their incomes have gone down significantly. Every section, like if you talk of medical profession, the corporate sector, the private sector, the number of patients visiting these hospitals has gone down. The incomes have gone down. So each hospital has curtailed the pay packages to the doctors, to other healthcare workers. Even now, people are very scared to go to the hospitals. Doctors are scared to treat them. So what I would want you to give some comfort to our audience that how they can deal with this stress. Like when I was listening to Ms. Menka Gandhi's interaction with you, where she mentioned that she received almost 53,000 telephone calls. Violence has increased in the society.
So what we would like to hear from you, how, because this pandemic is going to stay. It is not going to go away in September, October, November. It is going to stay for another year or so in some form or the other until the vaccine comes, which may be effective, which may not be effective. And we have to deal with this situation for longer than what we anticipated in March. So we would like to hear you on this aspect, particularly the psychosocial aspect, the stress, how people can use the preachings of Dhyan Foundation, which you have been otherwise giving to a lot of people, like Dr. Gupta mentioned, and it will come very handy for people to cope with this huge psychological stress which people are undergoing for various reasons. Dr. Saab, there are 2 points which you made. One is, all of us have been affected. All of us. And secondly, the impact on the society as a whole and a general solution for that. Now, I would like to point out that my subject is not psychology or medical science. My subject is yoga. Now, when we talk about yoga, we believe that each individual has his own individual journey. There is never a generalization between a group. That, okay, this group of people now, or the whole society now, it's never like that. And secondly, we believe that the individual karma of a being, whatever a being does individually, that is what affects it. It is never a herd mentality in the spiritual sciences. So if you're looking for a solution from the spiritual sciences, first we have to accept these 2 very basic points. First, the law of karma, and second, the individualistic nature of the soul. When the soul takes birth, it takes birth because of its previous karmas, of its previous lifetimes, number 1. And number 2, it takes birth because it has been given a task by the divine. These 2 things. Those souls which take birth, which have been given a task by the divine, when they are in the process of completing the task, they do not look at anything else. They go on single focused, no matter what is happening around them. So those souls who have come because of negative karmas and who have taken birth because of negative karmas, you see, you have been in the highest positions in society and you still are. But the question is that time is flying, time is fleeting very fast. There is no such thing as a concept of time, because all these years would have gone so fast for you. Never even realized how time has gone. And those years which are left, you have an idea how many they are. And if so many have gone, तो इतना थोड़ा सा बच गया, उसका क्या? उससे क्या हो जाएगा? So it becomes an individualistic journey for you. People look up to you. Why I had requested you for this forum? Because जो मैं बोलता हूँ, what I speak, maybe 1% people listen and 0.5% understand. But what you as a reputable doctor in a high place in society today, what you speak, that people will listen very attentively and they will imbibe that also. So if somehow the concepts of spirituality are delivered through you rather than through me, they will have a major impact on what you are suggesting in the complete strata of society. Not just 1 or 2 or 3, across the board. And as individual people, as individual travelers,
those who are practicing the subject of spirituality in its true form, for them, all this is not needed because they already know. Now, if you look at the Sevaks of Dhyan Foundation, including me, you'll be amazed if I tell you that majority of the people in Dhyan Foundation, the jobs which they had, majority, they have got promotions. There's another Dr. Mishra whom we have in the foundation. He's a scientist from Bombay. He's a chemist. He called me yesterday only and he said, Yogi ji, I've been offered jobs. I'll have his video recording. I'm being offered jobs and I'm getting much higher salaries. What is this happening? ये क्या हो रहा है? And not just him. Not just him. I think Dr. Gupta also would have gone through a similar experience of a betterment in the time period through the pandemic. And not just a couple of these people. I can give you a whole list. Now, what is this? And secondly, about the socio effect or the socio psycho effect, not the socio eco effect, the socio psycho effect, if I talk about, you will be surprised that Dhyan Foundation people have come into cow protection with more vigor in this pandemic time. Now they're feeding more dogs, they're going out and helping more people outside your aims for the last 10 years. I think you would have seen many times. We have a Dhyan Foundation van standing where we feed everybody who comes. Not even one single case of corona in entire Dhyan Foundation across 7 countries. And not one single case of any person who is sat inside the house, shutting doors. Of course, the protocols are being followed, there is no doubt about that. Chavanprash is being had, ghee is being had, used in the right way. Using masks, using gloves, whatever the SOPs are, is being followed. But a lot of people are following the SOPs. Not even one single case. Enthusiasm has increased more. They are more stable, they are more happy. Corona or any disease does not scare us at Dhyan Foundation. It doesn't impact us either socio-economically or socio-psychologically. They don't affect or impact us. Why? Because we are in a हरि कार्य. हम लोग सारे के सारे हरि कार्य में जुटे हुए हैं. जब हम हरि कार्य में जुटे हुए हैं तो जैसे गुरु गोविंद ने कहा था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. We are so busy in focusing on one aspect of the Ishwar, the Param Satya, and that is reality, the truth. What has to happen to you will happen to you. That is what our spiritual sciences say. Nothing can change that. But if you are in हरि कार्य, जो आप ये झंडा देख रहे हो हमारे पीछे, if you are in हरि कार्य, ये बजरंग बली का ध्वज है, ये हनुमान का ध्वज है. तो जहां पे हनुमान का ध्वज है, जहां बजरंग बली का ध्वज है, वहां पे अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता. what you call an eventuality, कुछ भी हो गया, an unfortunate incident, वो तो हो ही नहीं सकता. हम बिफोर द पैंडेमिक स्टार्टेड एट ध्यान फाउंडेशन, हम लोग 15,000 मुंह के अंदर खाना डाल रहे थे, हरि कार्य में जुटे हुए थे. 15,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैंडेमिक हम लोग 40,000 के मुंह में डाल रहे हैं. 40,000. तो हमारी फैमिली में तो इतने बढ़ गए, तो हमारे पास स्वयं की चिंता करने का समय किधर है. माफिया ने हमारे को बहुत रोकने की कोशिश करी. एक माफिया का एस्पेक्ट हमें रोकने का आपने भी देखा था, आपने रिद्धि को बताया था, वो क्या क्या डालना शुरू कर दिया. तो उसमें तो अब दिस इनकरेजेस मोर
And when we see people like you, who after listening to all this kind of nonsense, still come on a forum with a brave heart, not many can do it. You can go very, very far. आप काफ़ी आगे जा सकते हैं. हरि पे, ईश्वर पे, अगर आप जो भी आपके पास आते हैं, आप उनको बोलिए ईश्वर सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है. आप ईश्वर को देखना चाहते हो, मैं आपको दिखाऊंगा. You want to see God? I will show you God. I am making categoric statement. You're a worst person in society. There is no doubt about that. So, with full confidence, you can say this to anybody who comes to you. आप ईश्वर को देखना चाहते हो, आप तत्व दर्शन चाहते हो, आपको अश्विनी जी दिखाएंगे. 100% दिखाएंगे, 99% नहीं दिखाएंगे. और अगर नहीं दिखा सके तो योग साधना छोड़ देंगे. It's a big statement, but it's a fact. But you have to walk the path. दूसरी चीज, जब हरि कार्य में जो व्यस्त है, जब हमारे गुरुओं ने, जो हमारे गुरु रहे हैं, I know Riddhi told me you have been very disillusioned with the gurus from a very young age. But if you will take gurus like Satyanand Paramhans, Ramkrishnan Paramhans, Guru Tegh, Guru Gobind, Raman Maharshi, a light should come up inside you, not disillusionment, because they were the facts. आप ये आजकल के तमाशे देख के हम लोगों को जज मत कीजिए. तो आजकल तमाशे हो रहे हैं, इनको देख के हम लोगों को जज मत कीजिए. हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं. हम लोग इंडिविजुअल सोल की कैटेगरी में आते हैं. जो हम कहते हैं वो हम करते भी हैं. तो जहाँ पे आपको लगे अंधकार है, जहाँ पे आपको लगे अंधकार है, जहाँ पे आपको लगे आदमी डिप्रेस्ड है, जहाँ पे आपको लगे आदमी सैड है, जहाँ पे आपको लगे आदमी की प्रमोशन नहीं हो रही, उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, उसको आप आंख बंद करके ध्यान फाउंडेशन भेज दीजिए. आपको 3 महीने के अंदर अंदर हम दिखा देंगे उसकी मुंह की चमक, और वो कितना खुश होगा. एंड हाउ ही विल से, डॉक्टर विश्वनाथ थैंक यू सो मच. योग का विषय सत्य का विषय है, अविद्या का विषय नहीं है. योग का विषय विद्या का विषय है, रियलिटी है. इट्स द ट्रुथ, इट्स द अल्टीमेट ट्रुथ, इट्स द फाइनल फ्रंटियर. देयर इज नथिंग आफ्टर दिस. एंड व्हेन यू आर एट द फाइनल फ्रंटियर, देयर इज नथिंग एल्स व्हिच मैटर्स टू यू, बिकॉज नाउ यू नो वेयर यू आर गोइंग. योगी जो होते हैं कभी बीमार नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते. कल मेरे पास हमारी बैंक की स्टेटमेंट आई थी इनकी ध्यान फाउंडेशन की. मैं तो ध्यान फाउंडेशन का मेंबर भी नहीं हूँ. लोग बड़ी एक्साइटमेंट से पूछते हैं आपको इतनी चैरिटी आती है, आप क्या करते हो उसका. मैं कहता हूँ मुझे तो पता भी नहीं कहाँ क्या आता है. जब इनके पास पैसे खत्म होते हैं तब ये मेरे से मांगते हैं, मेरे पास जो होता है मैं इनको दे देता हूँ. तो अभी स्टेटमेंट आई थी तो हमारे अकाउंट में इन्होंने बोला कि 98 पैसे हैं, 98 पैसा, और हमारे आउटस्टैंडिंग है 98 lakhs. क्योंकि सडनली अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, थैंक्स टू द पैंडेमिक, वो ट्रैफिकिंग और रुक गई है, क्योंकि माफिया भी डर गया है कोरोना वायरस से. तो वो जो पहले ट्रैफिक करता था उन्होंने वो हमारी गौशाला में भेजने शुरू कर दिए हैं. तो वो भरनी शुरू हो गई. मैंने कहा थैंक द माफिया. मैं रोज सुबह उठ के हाथ जोड़ता हूँ इसको माफिया को कि आई एम सो ग्लैड आपने मुझ जैसे पापी को ये मौका तो दिया दिखाने का योग शास्त्र होते क्या है. नहीं तो हम भी इन्हीं गुरुओं को फॉलो कर रहे थे जिनसे आप घबरा गए थे एक समय, जिनसे गुप्ता जी भी एक समय काफ़ी प्रभावित थे, मगर आप घबराते हैं शायद. तो हम भी जो है हम भी घबरा जाते. मगर ये माफिया ने हमें मौका दिया कि हम बता सकें, दिखा सकें कि योग शास्त्र होते क्या है. मैं तो साइलेंस में चला गया था, मेरे को तो किसी से इंटरेक्ट करने का भी दिल नहीं करता था. वो तो थैंक्स टू द माफिया, थैंक्स टू BSF जिन्होंने हमें बोला कि योगी जी इन्हें कोई खाना खिलाने वाला चाहिए, ये 10,000 गाय बैल कटने जाते हैं. तो हमने कहा फिर हम इनको खिलाते हैं ना, फिर हम आते हैं, हम आए हुए हैं, और हटा सकता है को हटा के दिखाए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे प्रैक्टिकल मीडिया के थ्रू, चाहे किसी भी मीडिया के थ्रू, चाहे फिजिकलिटी के थ्रू. कोई हटा सकता है तो हटा के दिखाए. तो प्रश्न क्या है, ये कॉन्फिडेंस हमारे में और ध्यान फाउंडेशन के अंदर कहाँ से आया है? ये आया है हरि से और इस ध्वज से. ये झंडा दिखाओ डॉक्टर साहब को, ये आया है हरि से और
जो ये ध्वज है उससे। ये सत्य का मार्ग है। हनुमान तो पूरे की पूरी हिंदुस्तान से लेके लंका तक छलांग मार गए थे हरि के नाम पे। फहरा के दिखाओ, फहरा के दिखाओ, कोई बात नहीं। ये देखा आपने, हनुमान का ध्वज है। अरे फहरा के दिखाओ, क्यों डरते हो भाई, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। ये देखो, जहां ये ध्वज है, जहां ये ध्वज है, वहां पे कोई डर नहीं है। जहां ये ध्वज है वहां कोई डर नहीं है। अभी जिस लड़की ने ये ध्वज फहराया है, अभी दिखाया है आपको, ये एक इंजीनियर है और ये मूवीज बनाती है, मूवीज बनाती है। तो ये अब सब छोड़ के सेवा के कार्य में लगी हुई है। इसको सत्य की वो रोशनी दिख गई थी। तो सत्य का मार्ग, हरि का मार्ग, हनुमान आपके साथ है। तो क्या डर, क्या फियर, क्या मृत्यु, क्या खुशी, क्या गम, केवल जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार और अपने अंदर वो what you call the being a being of light, that feeling of happiness, that feeling of contentment 24/7। शरीर छोड़ते समय हमें कोई घबराहट नहीं होगी किसी को ध्यान फाउंडेशन में, या जिनको आप भेजेंगे हमारे पास, और हम आपको ये भी पक्का वादा करते हैं उनको भी घबराहट नहीं होगी शरीर छोड़ते समय। शरीर हर किसी ने छोड़ना है। बड़ी खुशी से, स्वेच्छता से वो लोग शरीर छोड़ेंगे और उनको पता होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। और यही परम सत्य है, यही ध्यान फाउंडेशन है। तो किसी को अगर किसी भी पैंडेमिक से, आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन पैंडेमिक्स, बिकॉज लाइक यू राइटली सेड, द वायरस इज द बैक्टीरिया दैट गोइंग टू इवॉल्व। आज ये कल कुछ और होगा, एंड यू सेड इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे फॉर श्योर, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। नाउ वी हैव द ह्यूमन रेस हैज टू लिव विद इट। तो अगर हमको उसके साथ रहना है, हमको उसके साथ जीना है, तो हमको उसको अपना दोस्त बनाना है, हमने उसको अपना दुश्मन नहीं बनाना। यूज इट। हमने उसको अपना दोस्त बनाया और हमने देखो अब कम से कम इन 6 महीनों में 15,000 जानवर जो माफिया ने घबरा के पार नहीं करवाए हमें दे दिए, उनको बचा लिए। तो वायरस से भी हमें पॉजिटिव इफेक्ट ही हुआ। थैंक यू। इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है। ये हर कोई तो ध्यान आश्रम में नहीं आ सकता, तो जो लोग अब कहीं पे भी सुनेंगे ये चर्चा, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि इस जो स्थिति से वो कैसे अपने को योग और जो आपके ध्यान फाउंडेशन के जो विचार हैं या अष्ट योग है उसको यूज करके वो कैसे इससे उभर सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट अगेंस्ट ऑड्स भी पॉजिटिव माइंडसेट ले सकते हैं, उसके लिए आप कुछ कहेंगे लोगों से? सबसे पहले तो अभिनिवेश जो योग शास्त्रों में है, आपने अष्टांग योग की बात करी, तो उसमें एक शब्द है अभिनिवेश, द फियर ऑफ डेथ। सबसे पहले तो उसको हटा लें। जब आपने जाना होगा तो आपको केवल हनुमान ही बचा सकते हैं, आप स्वयं को नहीं बचा सकते। अपने समय पे आपकी बैठे बैठे आंखें बंद हो जाएंगी। आपने तो पता नहीं कितनी कितनी पर्सनालिटीज को अपने सामने जाते हुए देखा होगा। बड़े बड़े एम्पायर्स के हेड्स को आपने अपने सामने जाते हुए देखा होगा। बड़ी बड़ी एम्पायर के हेड्स के आपको फ़ोन आते होंगे, डॉक्टर साहब जरा VIP रूम अरेंज करवा दीजिए इनके लिए। और कितना आपने उनकी शक्लों पे घबराहट देखी होगी उस समय जब वो जा रहे होंगे। तो जो जनरल सोसाइटी है, ध्यान फाउंडेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री का पता है तो एक यूरोप में एक जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था हैनिबल। हैनिबल ने क्या किया था, कार्थीजिया के थे, उन्होंने हाथी लेके और घोड़े लेके पूरे के पूरे एल्प्स, कार्थीजिया से पीछे से एल्प्स होते हैं, पार करके ही एंटर्ड रोम एंड ही रीच्ड देयर हेडक्वार्टर्स, ही सराउंडेड रोम। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि रोमन्स को मार पड़ी थी। Thousands of them were killed. Rome fell to its knees. They surrounded the headquarters. उस वक्त क्या हुआ, मैं आपके जो भी लोग आपको सुनेंगे, इस चर्चा को सुनेंगे, उनको ये बात नहीं भूलनी। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त अंदर से आवाज आती है, अंदर से उन्होंने भोपो पे लाउड स्पीकर पे बोला, अंदर से आवाज आई, रोम इज नॉट अ लैंड मास,
वी आर नॉट बाउंड विद जोग्राफिकल बाउंड्रीज कि हम ये रोमन है मतलब रोम इतना है. रोम इज इनसाइड आवर हार्ट्स. रोम हमारे दिल के अंदर है. हम मर भी गए तो जो रोम की फिलॉसफी है वो जाने वाली नहीं है. हैनिबल, इट्स टाइम यू शुड रिट्रीट. उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट करी और उसके बाद सेकंड जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंसमेंट करी, जिस पैच ऑफ लैंड में हैनिबल बैठे हुए हैं, आई वॉन्ट टू ऑक्शन इट. आई वॉन्ट टू ऑक्शन इट बिकॉज ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन और रहेंगे यहाँ पे. उसके बाद ये लोग मारे जाएंगे सारे के सारे. दे विल बी पुश्ड बैक. हैनिबल वाज स्टन्ड. ही सेड इतनी बड़ी आर्मी लेके मैंने घेर रखा है, थोड़े से अंदर बैठे हुए हैं, आई कैन फिनिश देम एनी टाइम, और ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं. नॉट जस्ट दैट, वहां के जो रोम के बनिए थे, ऐसे हमारे गुप्ता जी हैं जो रोम के बनिए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्शन करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड बिडिंग फॉर दैट पीस ऑफ लैंड कि so much, so many gold pieces, so many gold pieces, so many gold pieces. And Hannibal was just looking at them. What is happening? Hannibal sent a message back to Carthagia. जो मैं कह रहा हूँ इस बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिए. ये पूरे विश्व को, पूरे ध्यान फाउंडेशन को एक मैसेज है जो मैं देना चाह रहा हूँ इस समय. हैनिबल ने कार्थिजिया मैसेज वापस भेजा. उसने जितने जनरल्स थे जो मरे थे उनकी उंगलियां काट के, उनकी अंगूठियां निकाल के कार्थिजिया भेजी कि आई एम जस्ट एट द एंड ऑफ दिस जर्नी. हम पहुंच चुके हैं, हमको सिर्फ अब ये कैप्चर करना है, हमको थोड़ी सी आर्मी की और जरूरत है. कार्थिजिया के जो बाकी जनरल्स थे दे रिफ्यूज्ड. उन्होंने मना कर दिया. वो कहते हम नहीं आएंगे. जो आप कर रहे हो तो हो ही नहीं सकता. जो आप कर रहे हो ये तो हो ही नहीं सकता. Hannibal had to retreat. Rome was saved. Rome survived. Hannibal went back. Within a few years, the Romans regrouped and they attacked Carthagia and Carthagia was wiped out. आज की डेट में Carthaginians है, Carthagia आप लोग नहीं सुनेंगे क्या होता है. तो बस जो ध्यान फाउंडेशन है वो थॉट है जो रोम का थॉट था. रोम इज इनसाइड आवर हार्ट्स. ध्यान फाउंडेशन इज इनसाइड आवर हार्ट्स. जो हमारा कॉज है, जो हमारा पर्पस है इस दुनिया में जीने का, अगर हर इंसान जो सुन रहा है ये वार्ता, अगर वो ये पर्पस से कॉज उठा ले तो उसे किसी बात का डर नहीं है. मगर हम हैनिबल नहीं हैं. हमारे ध्यान फाउंडेशन के लोग जो हैं, या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोग भी जो हैं, वो डरपोक नहीं हैं. वो नहीं डरते. वो अगर हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए इस समय, वो रीइंफोर्समेंट हमें और भेजेंगे. एंड वी विल कंप्लीट दिस टास्क. एंड व्हेन वी विल कंप्लीट दिस टास्क इट विल बी अ हिस्टोरिकल टास्क. ऊपर जाके अपना मुंह दिखा सकते हैं. हम ऊपर जाके ईश्वर को मुंह दिखा सकते हैं हम कुछ करके आए हैं. हम खाली ही नहीं लौट आए बस मजे लेके जिंदगी में. मजे लेना अच्छी बात है, हम सब लेते हैं, आपको भी लेने चाहिए, सारी दुनिया लेती है. इट्स गुड टू हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, नो डाउट अबाउट दैट. बट द पर्पस ऑफ लाइफ हैज टू बी मेट साइमल्टेनियसली विद योर कंप्लीट एफर्ट. सो आपके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये कोई ना समझे कि हम हैनिबल हैं. हम जिस मार्ग पे निकले हैं, हम हनुमान हैं. हम जिस मार्ग पे निकले उसको पूर्ण करके ही वापस आएंगे. हम हैनिबल नहीं है. और जो हमारे साथ जुड़ जाएगा इसमें, ध्यान फाउंडेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. आपको ध्यान फाउंडेशन की मेंबरशिप नहीं होती है, कोई फीस नहीं लगती है, कोई चार्जेस नहीं है. इट्स फ्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल यू हैव टू डू इज, जो रोमन्स ने कहा था, वी हैव रोम इनसाइड आवर हार्ट्स. यू शुड हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ ध्यान फाउंडेशन इनसाइड योर हार्ट्स. अपने दिल के अंदर ये रखें कि सृष्टि में जो कष्ट है, जो दर्द है, जो पेन है, उसका निवारण करें, उसको हटाएं. जब वो हटा देंगे तो क्या होगा? Automatically happiness, that contentment will come inside you and you will have no abnivesh, you will have no fear. तो पहले, सबसे पहले जो हम कहते हैं, आपको योग के मार्ग पर चलना शुरू करें. और योग का मार्ग बंदरों की तरह उछलना कूदना नहीं होता है, दवाइयाँ बेचना नहीं होता है. योग का मार्ग जो होता है वो होता है सत्य का मार्ग, ट्रुथ का मार्ग. और सत्य और ट्रुथ ये है, किसी की दर्द हटाइए आपकी दर्द जाएगी, किसी का भय हटाइए आपका भय जाएगा. अगर नहीं हटाएंगे तो कोई टेक्निक, कोई प्रिंसिपल, कोई अष्टांग योग, कोई साइंस कुछ नहीं है जो आपको बचा सकती है. आपके अंदर वो फियर सदैव रहेगा, हमेशा रहेगा. वॉक दैट पाथ जो हमारे गुरुओं ने किया वो करें. उस मार्ग पर चलें जो रमन महर्षि ने किया, सत्यानंद परमहंस ने किया, गुरु तेग ने किया, गुरु गोविंद ने किया. उस मार्ग पर चलें. उस मार्ग पर अगर चलेंगे तो आप ध्यान फाउंडेशन में हैं, आप चाहें या ना चाहें.
क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल संस्था तो है नहीं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हमारे नाम पे 1 इंच ज़मीन नहीं है कहीं पर। हमारे बैंक अकाउंट में आप जब मर्जी देख सकते हैं कि पड़ा है, क्या है पड़ा। मैं भी अपने आप को ध्यान फाउंडेशन का ही पार्ट बोलना शुरू कर दिया अब तो, देख के इनका जज्बा देख के, कैसे लोग कैसे कैसे बचा बचा के गाय बैल कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, बंदरों को खाना खिला रहे हैं। अयोध्या तक तो ये लोग जाके खाना खिला रहे हैं। जब मैंने देखा कि इनको 6 महीने हो गए, एक भी कोरोना का केस नहीं है, तो इन्होंने मुझे आगे कर रखा है। इट मीन 6 months, नो केस ऑफ कोरोना, इन्होंने मुझे आगे कर रखा है। तो मैंने श्रेय अपने ऊपर ले लिया, तो श्रेय तो मुझे मिल गया, ये करा इन लोगों ने। तो जो भी हैं, जो भी हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है। वो केवल सत्य के मार्ग पर चलें और वो दर्द हटाएं, भूखे का पेट भरें। ना उन्हें कभी दर्द होगी, ना उन्हें कभी भूख लगेगी, ये हमारी गारंटी है। अगर हुई और लगी, हम योग का मार्ग छोड़ देंगे। आगे चलें। धन्यवाद। इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होती है, या आप कहिए मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है उनकी, मानसिक शक्ति नहीं है, या और दूसरी तरह से हमारा देश बहुत बड़ा है और दुनिया बहुत बड़ी है, लोग जगह जगह रहते हैं, और वो लेकिन आपका ये जो आज हम लोगों का प्रवचन है, मैं इसको वही कहूँगा, और इसको सुनने से अगर उनको कुछ मन की तसल्ली मिलती है, मन की शांति मिलती है, तो अभी एक हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। हमारे जो विद्यार्थी हैं 10+2 जिन्होंने पास कर लिया है, और अब वो कोई इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी में है, कोई मेडिसिन में जाने की तैयारी में है, और इन दोनों के लिए 2 एग्जाम्स होते हैं। एक नीट कहलाता है, आपने शायद सुना होगा, नीट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट करके होता है, जो मेडिसिन के लिए यूज होता है, और एक जेईई है, जॉइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, जो आईआईटीज और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है, और वो सितंबर में ड्यू है। गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से ये जनरली मई जून में ये पूरे हो जाते हैं, और एडमिशन प्रोसेस जुलाई के एंड तक पूरी हो जाती है इनमें। लेकिन इस बार चूंकि कोविड था, तो ये एग्जामिनेशंस अभी हुए नहीं है, और इनकी डेट, नीट की डेट है, चूंकि मैं मेडिसिन से संबंध रखता हूं, तो मैं एक वेबिनार में था अभी 2-3 दिन पहले, तो ये स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि ये नीट कुछ एक स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए, और 13 सितंबर की बजाय और आगे इसको किया जाए, अक्टूबर किया जाए, नवंबर किया जाए। सब डरे हुए हैं कोविड की वजह से। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, उस पर शायद इस हफ्ते में फैसला आ जाएगा कि 13 सितंबर को होगा या आगे जाएगा ये एग्जाम। तो मैंने तो अपनी तरह से उनको काउंसिल किया कि आप दोनों परिस्थितियों के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार रखें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं एग्जाम होना चाहिए 13 सितंबर को, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको पोस्टपोन करती है, 6 महीने पोस्टपोन हो जाता है, सपोज आपका एडमिशन जनवरी 2021 में भी होता है, तो इसमें कोई हेवेंस विल नॉट फॉल, और आपका कोर्स 6 महीने थोड़ा पीछे रहेगा। 21 से शुरू होगा, तो वो उसी हिसाब से 6 महीने आप सप्लीमेंट्री बैच के साथ फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। तो ये बच्चों को बात पसंद आई, लेकिन फिर भी काफी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये पोस्टपोन हो। तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, एक तो फेस योर फियर्स, जो आपके भय है ना, उनके सामने खड़े हो जाइए जाके। आप अपने बच्चों को, जो भी हैं जो घबराते हैं, उनको बोलें फेस योर फियर्स। फियर में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो इंसान की आत्मा को हिला सके। डर में इतनी शक्ति नहीं है। अब उसको समझने के लिए क्या करें? एक योग शास्त्रों में बड़ी सिंपल सी क्रिया है जिसको सनातन क्रिया बोलते हैं। 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट। आप वो क्रिया करनी शुरू करें, सबसे पहले आपका भय जो है वो गायब हो जाएगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज द फियर। इससे ज़्यादा लोग तो इन्फ्लुएंजा से मर गए हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स तो मालूम ही है कि इन्फ्लुएंजा घट गया है जब से कोरोना आया है।
जब से कोरोना आया है, डेथ्स फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, फ्रॉम निमोनिया, दे हैव गॉन फॉलन डाउन, फ्रॉम इन्फ्लुएंजा दे हैव फॉलन डाउन, इन्फ्लुएंजा केसेस कम हो गए हैं। तो यू हैव टू फेस योर फियर, ये क्रिया करनी शुरू करें। ये क्रिया आपका जो बेसिकली हमारा डर कहाँ से होता है, हम लोग योग शास्त्रों में क्या बोलते हैं, ये अनाहत चक्र होता है। यहाँ पे ये शरीर के अंदर और बाहर दोनों होता है। जब हम किसी को देखते हैं, जैसे ध्यान फाउंडेशन में ये लोग जब किसी का एलिमेंट डायग्नोस करते हैं तो वो इनको देख के करते हैं, चक्रों को देख के करते हैं। तो जो अनाहत चक्र होता है उसको जब हम ये सनातन क्रिया करते हैं तो उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है। ध्यान फाउंडेशन का सक्सेस का राज ही ये है, इनके अनाहत चक्र जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। बिकॉज वी आर जस्ट ए कंप्यूटर। आप ये समझिए, हम लोग केवल एक कंप्यूटर हैं, हम लोग कंप्यूटर के सिवाय कुछ नहीं है। और ये हमारे अंदर ये वो लगे हुए हैं सॉफ्टवेयर्स अलग अलग, आज्ञा चक्र सॉफ्टवेयर, विशुद्धि चक्र सॉफ्टवेयर, अनाहत चक्र सॉफ्टवेयर। बस सॉफ्टवेयर डलता है, वो चलना शुरू होता है, अपने हिसाब से ऐड करना शुरू कर देता है। तो जो अनाहत चक्र का सॉफ्टवेयर है, ये इसका डिफेक्ट है थोड़ा सा। दिस क्रिया will ensure not 99% but 100% that there will be no fear. And once there is no fear, there is going to be no calling a postponement of any kind of exam. Examinations should never be postponed. They should be faced. Because those who are the best will remain the best. ये जो सनातन क्रिया है, ये सनातन क्रिया का कुछ इनको वीडियो पे डेमोन्स्ट्रेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, आप जहाँ भी करना चाहें, हमारे ध्यान फाउंडेशन की साइट पे क्रिया डिफाइंड है पूरी की पूरी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव अ ग्रुप हमारे फाउंडेशन में, एक जैसे एक बच्चों का अंडर 22, 23 ईयर्स ओल्ड एक TNT ग्रुप है। एंड ऑल यंग चिल्ड्रन, ऑल स्टडिंग, सब पढ़ने वाले हैं, जिन्हें काम ढूंढने वाले हैं। तो वही लोग सिखाते हैं। दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। जैसे आपने जो हाल बताया, हमारे पास जब आता है ना कोई, तो इसी कंडीशन में आता है, घबराया हुआ, डरा हुआ, प्रॉब्लम से परेशान, दुखी। तो अब इन बच्चों को देखिए, काफ़ी सारे हैं, ह्यूज ग्रुप ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर, हर कंट्री में हैं। इनकी कॉन्फिडेंस देखिए, यही लोग सिखाते हैं। तो ये जब ये करवाएंगे वो क्रिया, दे विल गेट दिस क्रिया डन। तो व्हेन दे विल गेट इट डन, यू विल फाइंड ऑटोमेटिकली अ चेंज हैपनिंग, दैट फियर विल गो अवे। द प्रॉब्लम इज द फियर हैज टू बी रिमूव्ड, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, बीमारियां तो रहेंगी, सब कुछ तो होगा, वो डर कि हाय मर जाएंगे, वो हट जाएगा इस क्रिया से, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द अनाहत चक्र। तो दिस इज साइंस विच दिस स्पेसिफिक क्रिया इज बेस्ड ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। आपका एक वीडियो, आपका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उसमें आपने कहा कि योग जो करने से आपका शरीर जो स्वस्थ रहता है, तो योग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग करना चाहिए। और ये मैंने भी स्वयं भी महसूस किया है, खुद भी हम लोग, मैं और मेरी पत्नी दोनों शाम को 1 घंटा करते हैं, जो भी आसन हमने सीखे हैं घर पे अपने आप। और मेरा भी मानना ये है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग से बहुत लाभ होता है। इसका जो डिजीज प्रोसेसेस में योग का कितना उपयोग आपने देखा है आपके एक्सपीरियंस में? क्या इसके लिए आप योग को किस बीमारी में कितना, जैसे एक एस व्यासा फाउंडेशन है, एस व्यासा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है एक बेंगलोर में, शायद आप जानते हो, वहाँ प्रोफेसर नागेंद्र हैं, जो जिनके साथ हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं एम्स में, जब मैं वहाँ पे डायरेक्टर था। और एक हमने इंटीग्रेटेड सेंटर भी वहाँ बनाया है, जिसमें योग को भी इनकॉर्पोरेट किया है। तो काफ़ी स्टडीज इस पर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कार्डियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, सर्जरी है, और कि सर्जरी, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी में कैसे ये मदद करता है, और सांस की बीमारियों में कैसे रोल है इसका, हाई ब्लड प्रेशर में कैसे रोल है इसका, डायबिटीज में कैसे रोल है इसका, टू आइदर reduce the medication
or stop the medication, or at least those who are on the borderline, उनको ये बढ़ने नहीं देते बीमारी को। तो उसमें योग का स्वास्थ्य में और योग का बीमारी में, रोग में आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस विषय में, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, और कैसे आप सबके लाभ के लिए बताएंगे कि इसको किस तरह से लेना चाहिए? व्यासा इंस्टीट्यूट में एक सेशन हुआ था ध्यान फाउंडेशन का, वहाँ जाके मंत्रों का ज्ञान इन लोगों ने दिया था। वीएडए सेशन रहे। डॉक्टर नागेंद्र जानते हैं ध्यान फाउंडेशन को अच्छे तरीके से, आप उनसे कभी अगर बात करेंगे तो। डॉक्टर नागेंद्र नोज ध्यान फाउंडेशन। उनकी इंस्टीट्यूट में हमारा सेशन भी हुआ था, मैं नहीं गया था, ध्यान फाउंडेशन ने कुछ लोग गए थे वहाँ। उन्होंने मंत्रों का एक एक्सपीरियंस भी करवाया था कि मंत्र उच्चारण क्या होती है और क्या ध्वनि होती है, द इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। काफ़ी हम्बल इंसान है, काफ़ी जेन्युइन इंसान है डॉक्टर नागेंद्र जो है, अच्छे लगते हैं मेरे को। गुप्ता जी के दोस्त हैं बड़े अच्छे, मगर क्या गुप्ता जी ने मिलाया कभी नहीं मुझे। मगर मगर प्रश्न ये उठता है, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग एक गलती कर रहे हैं। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम योग को स्थूल मान रहे हैं। हम योग का जो सूक्ष्म एस्पेक्ट है उसे हमने कंप्लीटली बाईपास कर दिया है। हमने योग को इंग्लिश योग बना दिया है, योगा बना दिया है। मैं इसीलिए योग कह रहा हूँ, मैं योगा नहीं कह रहा। हाँ नहीं, हम लोग बता रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो एक एक्सेप्शनल इंसान हैं, मुझे अच्छा लगा बहुत आपसे मिलके। हम एक गलती कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम जो स्थूल है कॉन्सेप्ट, जो फिजिकल एस्पेक्ट है, वो लेके चल रहे हैं। योग जो है वो स्थूल नहीं है। जब आपने जो सब बीमारियों के नाम लिए, जैसे अगर मैं बोलूँ आपके देखिए तो T9 में आपके थोड़ा सा मुझे डिफेक्ट लग रहा है देख के, तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में T9 में थोड़ा सा मुझे दर्द फील हो रही है आपके स्पाइन में, तो आप सोचेंगे क्या बोल रहा है ये आदमी। तो योग ये होता है डॉक्टर साहब, योग होता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ योर अवेयरनेस। आपकी जब अवेयरनेस बढ़ती है तो अगर आपने कोई चीज़ काम करी, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप एम्स के हेड थे, अब एक जो चपरासी ने करना है काम, आप वो देखिए, लुक एट द हायरार्की फ्रॉम द हेड टू द पियन। पियन जो काम करेगा सुबह से लेकर रात तक, वो हेड को उसके लिए सिर्फ एक सोचना ही है, सिर्फ हेड को सिर्फ उसके लिए सोचना ही है। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नीचे के चक्रों से सोचते हैं कि अगर पेट की बीमारी है तो लघु शंख प्रक्षालन करो। ऐसे नहीं होता है। वो चपरासी वाला काम नहीं करना चाहिए हमारे को हेड वाला काम करना चाहिए। अब मैं हेड से बात कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हम हेड वाले काम करें सारे के सारे। हेड का एक थॉट होता है, कॉन्शियसनेस। जब आप योग करते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। जब आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है तो आप कोई भी चेंज अपने शरीर के अंदर जैसा आप चाहें आप लेके आ सकते हैं। आप जिस चीज़ को रोकना चाहें रोक सकते हैं। उसके पीछे प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया चक्रों की होती है। आपका अपने चक्रों पे कंट्रोल आ जाता है। बेसिकली व्हाट मेक्स योर बॉडी फंक्शन इज नॉट द फिजिकल बॉडी विच इज जस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट, द 5 एलिमेंट्स। इट इज द अदर एस्पेक्ट्स, जैसे हम बोलते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय, जो हमारे लेयर्स होते हैं, द ट्रांसमाइग्रेशन थ्रू दीज लेयर्स एंड अंडरस्टैंडिंग दीज लेयर्स। सो अगर कोई, जैसे लेटेस्ट से आपने एग्जाम्पल लिया माइग्रेन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेन, कि इफ यू पिक अप डिजीजेस एट रैंडम, और इफ यू वांट टू पिक अप एनी डिजीज यू कैन पिक अप, आई विल टेल अबाउट दैट कि किस हिसाब से वो, व्हाट इज द बेसिक द फिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज। या जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को एलर्जी है आजकल, पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं सोसाइटी में। देखिए बच्चों में भी एलर्जी की वजह से। ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है वो 3 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करते हो। एक तो आपका वेंटिलेशन होता है। तो इसमें जो, अगर आप लोगों को ये बताएं कि ध्यान
और मेडिटेशन में क्या फर्क है? अब जैसे आपने आपने ब्रीदिंग की बात करी, ब्रीदिंग का और प्रोसेस ब्रीदिंग, आपने बात करी, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी प्राणायाम से कैसे इससे आप आपको समझे। आराम मिलता है? मेडिकली आप लोग क्या बोलेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस को? वेंटिलेशन, डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने ब्रीदिंग प्रोसेस को। ये 3 ही पार्ट्स होते हैं। तो अब इसमें आप ये देखिए कि अगर आप प्राणायाम को ये सोच के करेंगे कि वेंटिलेशन हो रही है, ओके, बट उसमें डिफ्यूजन नहीं हो सकती और परफ्यूजन नहीं हो सकती। क्यों? वी डोंट हैव सो मच टाइम व्हेन यू आर डूइंग अ प्राणायाम, एनी प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, तो यू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द लंग्स। सो जब लंग्स पे प्रेशर डालते हो आप, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती उसमें से। प्राणायाम बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो बढ़ाता है, ऑक्सीजनेशन नहीं करता। तो अगर ज़्यादा लंबा प्राणायाम करेंगे तो हाइपोक्सिया की तरफ जाएंगे, करते रहेंगे तो मेडिकली आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्राणायाम नेवर हैज़ अ ऑक्सीजनेशन इफेक्ट बिकॉज वो तीनों प्रोसेस बाईपास हो जाते हैं। इधर इट्स टू स्लो, यू क्रिएट टू मच प्रेशर, और इट्स टू फास्ट, देयर इज नो टाइम इन डूइंग प्राणायाम। तो प्राणायाम का पर्पस होता है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सेल। कैसे? जैसे अगर आपके जैसे हार्ट पेशेंट्सों की जगह थेरेपीज होती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, कुछ किसी का डिजीजेज ऐसी होती है, मुझे एक तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स नहीं बताई है ये चीज़। तो वो क्या होता है, हम बॉडी को एफिशिएंट करने के लिए, इफ़ यू गिव मोर ऑक्सीजन इट इज़ मोर हार्मफुल, बिकॉज एक सैचुरेशन पॉइंट होता है आपके सेल का। You have to go as per the saturation point. You cannot exceed the saturation point, the parameters of your saturation point of that specific cell. आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते, आपको उस तक ही रहना है। तो उस सेल को एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, दैट इज द प्रोसेस दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। तो ब्रीदिंग की अगर आपने बात करी, तो क्योंकि आपके डायफ्राम की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, क्योंकि डायफ्राम की मसल्स कमज़ोर हैं इसलिए आपके लंग फंक्शन जो हैं वो घटे हुए हैं, इसलिए आपके लंग फंक्शंस नॉर्मल नहीं है। अगर आपकी डायफ्राम की मसल स्ट्रांग इनफ हो तो आपके लंग फंक्शंस ठीक होंगे, मगर दैट डज नॉट गारंटी द प्रॉपर ब्रीदिंग प्रोसेस ऑल्सो। तो प्रॉपर ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे को उस सेल को, जो आपका लंग का सेल है, वो जो लेट्स से एल्वेलाई ले लो, सेल छोड़ दो, एक स्टेप आगे आ जाओ, उसको एफिशिएंट बनाना है। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हमें पूरा प्रोसेस लेके चलना है। जैसे एक प्राणायाम में 2 प्राणायाम से कुछ नहीं होगा, आपको 3 स्टेजेस पे काम करना है उसमें। फर्स्ट स्टेज इज कि एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, नॉट ऑफ द गैसेस बट ऑफ द वेस्ट मैटर, आमा, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। जो हम लघु शंख की क्रिया करते हैं, बस्ती की क्रिया करते हैं, जिसको मेडिकल साइंस ने अब तोड़ मोड़ की कोलन हाइड्रोथेरेपी बना दिया है, विच इज एक्चुअली मोर हार्मफुल देन गुड बिकॉज इट इंटरफियर्स विद जो पेरिस्टासिस, बेसिकली आपका जो कोलन हाइड्रोथेरेपी होती है, मगर जो आपकी बस्ती क्रिया होती है वो पेरिस्टासिस को एड करती है। जब टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तो आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, इट इज एबल टू मूव नाउ कंफर्टेबली एंड जेंटली। फिर हम च्यवनप्राश और घी को इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर टू गिव दैट लुब्रिकेशन। हम घी से मालिश करते हैं, जब घी से मालिश करते हैं तो जमा हुआ आमा जो है वो निकल जाता है आपके लंग से, बिकॉज द स्किन अब्जॉर्ब द क्वालिटीज ऑफ द घी, नॉट द घी। जैसे डॉक्टर लोग मना करते हैं कि सिर पे तेल की मालिश ना करो, वो गलत समझते हैं सिर पे तेल को अब्जॉर्ब कर रहा है। सिर तेल को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सिर जो है वो तेल की प्रॉपर्टीज को अब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द सटलर चैनल्स। द प्राणा ऑफ द ऑयल इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द हेड, नॉट द ऑयल। तो वैसे घी जब आप छाती पे मालिश करते हो तो घी का प्राण अब्जॉर्ब होता है, तो जो जमा हुआ आमा है आपके लंग्स में वो निकलता है। फिर प्राणायाम किया जाता है। फिर जब प्राणायाम का प्रोसेस आपका फोर्सेबल होता है तो जो रेजिडुअल एयर है, जहाँ पे सारे टॉक्सिन्स भरे होते हैं, रेजिडुअल एयर बाहर निकल जाती है। These two processes, if they are done jointly, and then you have च्यवनप्राश after that, you will never have a lung problem. मेरी थोड़ी बहुत बुद्धि में, थोड़ी बहुत समझ में, तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय बेसिकली हमारा हरि कार्य ही विषय है, ये सब मेरा विषय नहीं है। थोड़ा बहुत जो आप लोग सिखा देते हो, कोई डॉक्टर साहब ने सिखा दिया, मैं तो वही बोल देता हूँ बैठ के। तो जो योग की प्रक्रिया इन चीज़ों के लिए है वो सिर्फ केवल यही है कि अब होल प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड, बट देन अगेन द प्रॉब्लम कम्स, हाउ लॉन्ग विल द लंग्स रिमेन हेल्दी, कितने समय तक फिर उसके बाद क्या करोगे? तो जो गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है उसको चमकाने की बजाय
उसको नहलाने धुलाने की बजाय, उसकी अपॉल्स्ट्री चेंज करने की बजाय उसके अंदर बैठ के उसको चलाओ भाई। इससे पहले वो गाड़ी में खड़े खड़े जंग लग जाए और वो वहीं ख़त्म हो जाए। कब तक चमकाते रहोगे? ठीक तो हो जाओगे एक बार, मगर कितनी बार तक ठीक होते रहोगे? कभी ना कभी तो जाना ही है ना। तो उस गाड़ी को चमकाने की बजाय यूज इट टू ट्रैवल, टू रीच समवेयर, देन द पर्पस ऑफ योग इज फुलफिल्ड। एंड बहुत बहुत धन्यवाद फॉर giving your thoughts on various aspects of COVID, how to deal with that, various aspects of to the students, how they can deal with this situation, even if the exam is postponed or it is held, and also how yoga can overcome the problems, physiological problems of the body. Body is a complex machine. We all know that. It's not as simple as we consider. And yoga is not only a physical exercise, it has to be in totality, that one has to have the psyche and mindset to get into the yoga kriyas. I think that is something which all audience must have taken and will take from this. And that is what I have taken, the message that yoga is not a physical exercise only. It has to be taken with the rest of the philosophy of It's a journey. dharma. It's a journey. It's It's a not journey of the spirit. it's not one time thing. It has to be, it is a continuous process. Continuous journey of the spirit from Yeah. here to eternity. Absolutely. So thank you so much. बहुत बहुत My pleasure. धन्यवाद. So I'm glad that you came and I'm glad that you participated in this. मैंने भी काफी कुछ सीखा आपसे बात करके आज। हर हर महादेव। हरे